Good afternoon, friends. We are here to basically address on the issue of Durga Shakti, and the second matter is about the FDI rules which have been altered by the government yesterday. The first matter is that if we look at the entire episode of this young IAS officer of 2009 batch, and the manner in which the handling of the situation has been done by the SP government, it is very, very apparent that in Uttar Pradesh, the law and order situation is very badly affected for the reason that honest and upright officers are targeted unfairly by the government, and honesty is to be punished and gundagardi is to be rewarded. And it is in this entire circumstance that the whole sequence of events and circumstances need to be appreciated. If we look at the sequence, the only response of the government has been सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा था इसलिए उनकी सस्पेंशन हुई है. But the truth is something else. The truth is there was illegal unauthorized dredging which was going on the riverbed of Yamuna and Hindon. And she had actually seized many dumpers carrying sand and taken 80 lakh rupees worth of fine, collected that fine from these unauthorized people. She has been communicated to the government and she was told to basically withdraw some of that communication by putting unfair, unnecessary pressure on her, which she refused to give in. Under those circumstances, this particular action has been taken against her. By doing this, and if I go further, the two ministers, one being Azam Khan and another gentleman, have made very communally colored statements. Azam Khan has said, Ram Naam ki loot hai, loot sake to loot, without referring to the next sentence being प्राण चले जाएंगे. So I don't expect Mr. Azam Khan to have the understanding or the philosophical background to appreciate and understand the nature of this spiritual message. The nature of this spiritual message is more in the nature of spiritual thought than the resources loot which Sapa government has been engaging itself with in protection of such people who are looting the country, who are looting the state. And the other gentleman has also made a very bragging remark that within 41 hours I have had her suspended, and those tapes are also available with the media. And that kind of bragging which is going on by the SP ministers need to be relooked, revisited and appreciated, leading to the suspension. So that is the real circumstance. And if we appreciate the entire episode, it's a two-way process. In fact, I heard someone else has made a statement very recently, a couple of hours ago, कि अफसरों की पूंछ टेढ़ी होती है. So I think जिन लोगों के दिमाग टेढ़े होते हैं वही इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. End of the day, it's apparent that the SP government is indulging in illegal, unauthorized campaign against an honest officer by rewarding the ones who are actually working with them or have been co-opted by the SP government. And in this entire thing, the other statement, if we attack that particular statement where they have said that because Sampradayik Mahul Kharab ho raha tha. So I have two arguments for that. First argument is that जो सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रहे थे, आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ना, जो ना कि उनके खिलाफ जो सांप्रदायिक माहौल
को ख़राब होने से बचाएंगे जो ऑथराइज्ड हैं। और इस बीच में जब से सपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में 27 राइट्स हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। उसमें से उन्होंने कितने अफसरों को अब तक सस्पेंड किया है वो जानकारी भी मैं प्राप्त करना चाहूँगी। मेरठ के राइट में जहाँ पर एक 4 साल के बच्चे को मारा गया और एक एसीपी उस गोलीबारी में शामिल थे, क्या उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? या ऐसे तमाम केसेस में जहाँ पर इनके अपने नेता उलझ रहे हैं सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? सो एंड ऑफ द डे that this particular issue of Durga Shakti again represents why law and order situation in Uttar Pradesh is going from bad to worse, because you are actually, as a government, protecting the wrongdoers and are punishing the ones who are taking action against the wrongdoers. The second aspect is about the FDI. Yesterday's news that in FDI the government has changed the rules. So all I can say is that this kind of flip-flop, and especially in retail sector, is showing the mindset of this government, that you make a rule which needs to be altered within 1 year and less than 1 year, and then the investment in the back support system in retail, especially when they said that we want cold storage and that kind of infrastructure to be developed in the country. And it is for this reason, because that was the main argument, it is for this reason that we want FDI in retail to be permitted and enhance the FDI in retail. Going back on the same argument today is very clear that they are going to bring in inventory into this particular aspect. And this kind of flip-flop, if we go to the policy which BJP has followed, and Mr. Narendra Modi, who's the campaign head of the BJP, has been emphasizing that we need to gain the faith and confidence of the Indian citizen when we are seeking FDI, and also the foreign investors. And we can assure that if we come to power, we will ensure that there is greater transparency in this system, and Indian citizen is no way neglected, and only then can the confidence of the foreign investor also be boosted. So flip-flop in policy indicates that this government's non-seriousness and is busy engaging in policy drawbacks, because it has not succeeded in controlling the fall of rupee, bringing FDI, because no FDI has virtually come. So under these circumstances, the economic policy of a government is pathetic, and is engaging in not the right policies, and the policies are actually against the interest of the country. I welcome any questions that you may have. थोड़ा FTA वाला है, हिंदी में थोड़ा कर दिया। FDI के विषय में सिर्फ यही कहना था कि FDI जब सरकार पिछले साल रिटेल में लेकर आई थी, तो ये कहकर लाई थी कि जो बैकरूम सर्विसेज जैसे होती हैं कि कोल्ड स्टोरेज बनाना है या संसाधन को जुटाना है और उसकी सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि इतनी वेस्टेज होती है, उतनी वेस्टेज होती है, इसलिए हमें FDI की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है। लेकिन कल जो इन्होंने अपनी पॉलिसी में जो अंतर लाए हैं, उसके मुताबिक उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर कर दिया गया है। तो यानी जो इन्वेंट्री है उसको उसमें जोड़ दिया गया है, जो कि पहले बिल्कुल स्पष्ट था कि जो FDI आएगी उसका कुछ प्रतिशत मात्र जो है, जो अधिक पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम आएगा, और उसको बनाने में हमको पैसा चाहिए, और इन्वेंट्री को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अब जो कल जो इन्होंने उसकी तब्दीली की है, उस तब्दीली के तहत इन्वेंट्री का जो मतलब माल सामान है, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ दिया है, जो कि आप की जो पॉलिसी का आधार था उसी को आपने हिला दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो जो FDI इन रिटेल के लिए आप लाना चाह रहे थे, उसी जो सिद्धांत है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। राधिका जी,
Radhika ji, if we go to the economic data, there are more than 14, 15 countries whose growth rate is higher than us, and they are getting FDI. And end of the day, it is not the international atmosphere which is affecting, it is the national atmosphere which is affecting the coming in of the FDI, for the simple reason the foreign investor does not have the confidence that the investment is going to reap any benefits for that person. डॉक्टर मुमताज़ आलम. देखिए, मुझे उनके बयान का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन डेमोक्रेसी में जो ये नहीं, शक्ति नागपाल के सिलसिले में अगर ये फिर वही जामा पहनाने वाली बात हुई ना, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर सही है, लोकतंत्र अगर सही है, तो नेताओं को भी अधिकार नहीं है कि आधिकारिक जो सही काम कर रहे हैं आप उनको सजा दें। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सामने आया है वो ये सामने आया कि एक प्रोबेशनर, 2 साल की प्रोबेशन होती है, उसने, अगर मैं कहती हूँ सही सब कुछ मान भी लिया जाए, उनके खिलाफ अगर केस को मान भी लिया जाए, तो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते थे। सस्पेंशन का तो ये केस ही नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ कॉन्डक्ट रूल्स में है, क्या मिसकॉन्डक्ट है, वो तो जो कानूनी तौर पे सही है वही होगा ना। किसी की इच्छा, मतलब आज मुझे आपकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, मैं सीएम हूँ तो मैं आपको उठा के बाहर कर दूँ, ऐसा नहीं होता। क्या कॉन्डक्ट है, क्या मिसकॉन्डक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, अगर कायदा कानून बना है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, तो वो कायदा कानून जो है नेताओं के लिए भी बना है, और वो उससे बाहर नहीं हो सकते। प्रशासनिक प्रक्रिया के दोनों हिस्से हैं, और प्रशासनिक प्रक्रिया में जो कॉन्सेप्ट है फेयरनेस का या जस्ट का या जस्टिस का या फेयर का, वो तो रहेगा। एक मतलब मेरे हिसाब से एक नया अधिकारी, मैं बच्चा नहीं कहना चाहती, पर 2 साल का प्रोबेशनर, उसका भी सीखने का समय है। आपको मान लीजिए कुछ चीज़ गलत भी लगी, आप बुला के समझाएंगे, कहेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या जो भी, आप उठा के सस्पेंड कर देंगे। और अगर सस्पेंड ही करना है तो मुझे बताइए कि आपने 27 राइट्स में कितने लोगों को सस्पेंड किया, ये बताएं। और जहाँ तक अगर कोई एक्शन लेता है, तो कोई भी आईएएस अपने आप एक्शन नहीं लेता, उसमें एसपी, डीएम और तमाम लोग शामिल होते हैं। तो फिर आपने इसी को सस्पेंड क्यों किया, बाकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो ये तो पूरा प्रकरण दिखाई दे रहा है कि ये राजनीतिक प्रकरण है, और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और गुंडा राज बना हुआ है। जूनियर नहीं, मतलब आईएएस हैं तो आप आईएएस हैं जी जी। नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कानून के दायरे से खुद बाहर हैं, और वो खुद कानून के दायरे में पहले रहेंगे तब वो लोकतंत्र की बात करें। क्योंकि आज तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा गुंडागर्दी से है, और ऐसी गुंडागर्दी से बड़ा खतरा है जहां पर आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और अपने जो सैंड माफिया और तमाम लोगों को बचाने के लिए। और उसमें आपको देखना होगा कि इसमें दो मुई राजनीति हो रही है। पहली बात, आपने एक मैसेज दिया ब्यूरोक्रेसी को कि आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मेरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज आपने ये दिया कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज, जिस तरीके की बयानबाजी हुई आजम खान से लेके तमाम लोगों ने, तो सांप्रदायिकता का रंग दिया। आप देखिए, पूरा प्रकरण देखिए, ये तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब देखिए, मैं बहस आपसे नहीं कर सकती, पैनल डिस्कशन नहीं है ये। देखिए, मैंने अपनी तरफ से आपको जवाब दे दिया है। डॉक्टर आलम, हाँ आते, राधिका जी 1 मिनट आपके पास आते। मिस्टर तिवारी,
It is in this context we have maintained that if the court is supervising, and at times we've said that it should be a court supervised investigation, it is for this reason only that we expect more fairness and just and order, especially when the allegation and accusations are against the very government. So it's a fair comment by the Supreme Court. मिस्टर हरीश लखेड़ा. देखिए पाँव छूना, मैं देखिए, हाँ मालूम है. शिवपाल नहीं, वो देखिए, अब पाँव छूना और वो एक आधिकारिक प्रशासनिक प्रक्रिया और किसी की स्वेच्छा कुछ अलग चीज़ें हो सकती है. मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे हिसाब से पाँव किसी के भी नहीं छूना चाहिए. सिर्फ ईश्वर के आगे पाँव छूना चाहिए ईश्वर का, और इंसान को सर सिर्फ वहीं झुकाना चाहिए. लेकिन अब कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ करता है या कुछ, उस पर मैं बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती. मैं इसको कायदे कानून के दायरे में रखना चाहती हूँ. मिस्टर अखिलेश शर्मा. हो गया. राधिका जी, आप कुछ सप्लीमेंट्री पूछना चाहते थे. जी जी जी, हाँ पूछिए. I'll tell you something, Radhika ji. Now that you've entered a different domain, but let me tell you, I'm sure there will be some Muslim journalists present here, and they can speak on. I'm purposely making that comment, and they will tell you that mosque is not a structure which you need for prayer. As per Islam, you can pray wherever you are. So this particular argument does not hold water. No, I'm just telling you, this argument does not hold water, and so far as unauthorized construction, whether by any religion or for religious purposes or as a personal property, is unauthorized, illegal, and has to be dealt with under the law and the law of the country. हाँ अमिताभ, हाँ रामनारायण जी. नहीं, वही मामला, असली मामला ही वो है. ये धर्म वर्म तो फिजूल में डाला जा रहा है सपा द्वारा. वही हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रश्न भी है ना, मस्जिद और मंदिर और ये सब प्रश्न सही प्रश्न नहीं है. असली मामला था कि वहाँ पर जो मरीन लाइफ है, ड्रेजिंग की वजह से अफेक्ट हो रही थी, गैर कानूनी काम हो रहा था. उन अफसर ने वहाँ पे 80 लाख रुपया जो के बराबर का जुर्माना लिया, बहुत सारे डंपर्स को रोका, बहुत सारी चिट्ठियाँ पत्र लिखे, और उन सब के रहते ये कदम उठाया गया. तो कहानी कुछ और थी, चिढ़ किसी और बात से थी, निशाना कुछ और बना और मामला कुछ और उठाया गया. यही मैं कहना चाह रही हूँ. अमिताभ श्रीवास्तव, अमिताभ सिन्हा जी. नहीं, वो मेरा ये वैसे मैं कमेंट कुछ नहीं करना चाहती, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये सब उनके संज्ञान में है. तो ये इस पर मैं ऑथराइज नहीं हूँ. वहीं से जो होगा. राधिका जी. देखिए, जहाँ तक हमारा स्टैंड जो है बहुत स्पष्ट है, और उसमें ये है कि जहाँ तक फाइनेंशियल या पैसों को लेकर जो भी जांच पड़ताल और तमाम मामले हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. और उन मामलों को लेकर ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप सीधा मेरे को, क्योंकि आप लोग आते हैं यहाँ, जानते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक संगठन या वैसा नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में. अधिकतर लोग जो हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं. तो
हम अपने सारे अकाउंट्स सोर्स से लेकर खर्चे से लेकर बैलेंस शीट तक इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को कानून के तहत देते हैं, और उस कानून के तहत जब हम कानून के देश के कानून का पालन करते हैं और उनको इलेक्शन कमीशन को देते हैं, इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक सरकारी एजेंसी है और वो आरटीआई से कवर है, आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है आप वहां आरटीआई डालकर निकाल लीजिए, हम इसके पक्षधर हैं। मिस्टर वेंकट, If you hear me on Modi, then you will not raise this question. This is not about Mr. Modi. This is about Mr. Shatrughan Sinha. No, there is no gag order. There is no gag order. We are free to speak what we wish to, but there has to be a party line. As long as on certain issues there is no party line, you refrain from speaking. मिस्टर सुजीत ठाकुर, आनंद जी आपके पास आते हैं। वो हो चुका उस पर इग्नोर कीजिए उनको उनको इग्नोर कीजिए, फिजूल में उनके हाँ नहीं, मैं उस पे ऑथराइज नहीं हूँ जी, मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड नहीं हूँ। बच्चा नहीं, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आप कहाँ कौन है, ज़रा शक्ल दिखाइए। नहीं, मेरा मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, मेरा कॉन्टेक्स्ट जो था वो बहुत स्पष्ट था। 2 साल जो है वो प्रोबेशनर होते हैं, और अगर प्रोबेशनर जो है वो अभी काम सीख रहे हैं, और अगर वो काम सीख रहे हैं तो उस समय पर जो है आप, अगर आपको कोई चीज़, मैं सब कुछ उनके खिलाफ मानती हूँ, दुर्गा नागपाल के सब कुछ जो समाजवादी पार्टी कह रही है सही कह रही है, ट्रांसफ़र कर देते। सस्पेंशन का केस कहाँ से बनता है ये समझाएं कानूनी तौर पर। और जहाँ तक बच्चे का विषय है तो मैं कहूँगी उनके पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव, उनका क्या इस पर प्रतिक्रिया, अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई, उनके भी विचार मैं जानना चाहती हूँ।